Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your English virtual class teacher teaching you standard 10th English. In the last video, part 1 video, we have seen this chapter. We have begun with this chapter, an encounter of a special kind. Myself Sagar Mahale. Now we are going to see the part 2 of the chapter. हमने वहां तक पढ़ा, कहां तक, जब वो मर्सीलेस नजारा, हॉरिबल पिक्चर क्लब हाउस के छत पर जब हमारे लेखक ने देखा। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हम एक बार रीड कर लेंगे ताकि हम एक छोटा सा रिवीजन कर सकें। तो आइए रीड करते हैं। An encounter of a special kind. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. Unfolded का मतलब होता है revealed, new dimension यानी new factor, engrossed यानी मग्न हो जाना, occupied in. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. A quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Intermittent means frequent. Minutes ticked by, I became deeply absorbed in the book. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of the dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. Students, see the meanings. Commotion means noise and confusion. Cacophony means loud and harsh noises. Hapless means unfortunate. Got the better of. It's a proverb. Overpowered या फिर defeated. I glanced toward the roof of the club house and saw something horrible. So students, यहां तक हमने देखा हुआ था. अब हम देखेंगे यहां से दूसरा पार्ट.
कि ऐसा कौन सा हॉरिबल दृश्य लेखक ने क्लब हाउस की छत पर देखा था। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with the definite intent to kill. एक बड़ा सा पुरुष लंगूर, बहुत ताकतवर, मानो कि वो पूरे लंगूरों के झुंड का सरदार था। उसने एक छोटे से लंगूर के बच्चे को अपने हाथों में बड़ी क्रूरता से पकड़ा हुआ था और वो बड़ी क्रूरता से उसे काट रहा था, मानो कि वो उसे मार ही रहा था। दिख रहा था साफ साफ कि ये अब बड़ा लंगूर जो है ये बेबी लंगूर को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। मर्सिलेसली का मतलब होता है क्रूएली, क्रूरता से। The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. जो helpless mother, लाचार माँ उस बेबी लंगूर की, और बाकी जो छोटे और कमजोर लंगूर थे जो ग्रुप के, वो स्कैटर्ड थे, मतलब फैल गए थे पूरी छत पे, और सब ये मर्सीलेस नजारा देख रहे थे। ये हॉरिबल, ये इतना क्रूर नजारा सबको देखना पड़ रहा था क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस ताकतवर पहलवान लंगूर के सामने जाने की और उस बच्चे को छुड़ाने की। माँ भी लाचार थी, बाकी जो कमजोर बुजुर्ग लंगूर थे वो भी लाचार थे, और वो सिर्फ ये कत्लेआम देख रहे थे, और ये किसी में भी ताकत नहीं थी कि वो बड़े लंगूर को जाके कहें या उससे बच्चा छीन के ले आए या उसे मारे या बचाए। जो हीरोइक एक्टिविटी थी वो कोई कर नहीं पा रहा था। देखते हैं आगे क्या हुआ। I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. बिना किसी के याद दिलाने की मुझे एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी विचित्र प्रथा याद आई कि जो जानवरों में अक्सर देखी जाती है, और ऐसी नॉलेज भी हमें डिस्कवरी जैसे चैनल्स होते हैं उनमें से मिलती है, जैसे एनिमल प्लैनेट डिस्कवरी चैनल्स, कि एक झुंड में एक ऐसा मुस्टंडा होता है, एक डोमिनेंट मेल होता है, वो हमेशा दूसरे मेल्स को क्या करते रहता है, डोमिनेट करते रहता है। क्यों? क्योंकि कल जाके वो उसमें से उसको चैलेंज करके उसकी झुंड की जो सरदार की गद्दी होती है वो छीन ना ले। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि अगर तुम्हें सरदार बन के रहना, जैसे गैंग में होता है, गैंग का एक लीडर होता है, अगर तुम्हें उस गैंग का लीडर बनना है तो लीडर को मारना पड़ता है, तो तुम गैंग लीडर बन जाते हो। ऐसे हमने पिक्चर में बहुत बार देखा है। तो यही गैंग का जो प्रथा है, ये कस्टम जो है, ये एनिमल्स में देखी जाती है। वहां पे हमेशा जो सरदार होता है वो डोमिनेंट मेल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा झुंड उसी की सुनता है और उसी की कहासुनी मानता है। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, मैंने बिल्कुल भी देर ना करते हुए एक स्टाउट स्टिक, स्टाउट का मतलब एक बड़ी सी मोटी सी लकड़ी अपने हाथों में ली और हर्ल्ड अ पीस, हर्ल्ड मतलब पत्थर उठाया एक बड़ा सा और हर्ल किया, यानी जोर से फेंका। किसकी तरफ? The marauding langur. Marauding का मतलब होता है सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक। जो यहां वहां देख रहा था मारते वक्त कि कोई, मैं इस बच्चे को मार रहा हूं तभी मुझ पे कोई हमला ना कर दे, और वो देखकर लेखक जो है उसने इंसानियत को जागरूक करते हुए उस बच्चे लंगूर की जान बचाने की ठानी, एक लकड़ी उठाई, एक बड़ा सा पत्थर उस लंगूर की ओर मार फेंका, और उसके आगे क्या हुआ देखते हैं। The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. Langur was so infuriated, means वो इतना उस क्रूरता वाले काम करने में मग्न था कि उसने थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया मेरे असॉल्ट का, यानी मेरे एक्शन का उसने थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं दिया। मानो वो पत्थर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो बच्चों को मसलने में ही लगा हुआ था। फिर ये देखकर लेखक ने क्या किया, और भी पत्थर उठाए और भी मारने लगा।
और भी पत्थर उठाए और भी मारने लगा। द डॉग्स भी क्या कर रहे थे? अब लेखक को पता चला कि ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ये कौवे क्यों काय काय कर रहे हैं, क्योंकि सबको उस छोटे से बेबी लंगूर पे दया आ रही थी और सब ये चाहते थे कि वो बड़ा जो लंगूर है उस छोटे से बेबी लंगूर को छोड़ दे और चला जाए यहाँ से। इसीलिए कुत्तों ने भी अपना पार्ट चालू रखा। उनका क्या पार्ट था? क्योंकि वो छत के नीचे थे, वो छत के ऊपर नहीं जा सकते थे और इसलिए वो नीचे से डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे अपनी भौंकने की आवाज से। और फिर भी उस लंगूर को ना कुत्तों के भौंकने का फर्क पड़ा, ना मेरे मारे हुए पत्थरों का फर्क पड़ा, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। अब किया तो क्या जाए, आगे देखते हैं। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. Changed circumstances, हालात यानी circumstances, change यानी बदलाव, हालात में बदलाव आया। Suddenly, एक unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. So बच्चों, हालात अचानक से बदल गए। किसी और कोने से लंगूर की तरफ और भी हमले होने लगे, अनएक्सपेक्टेड अटैक, और वो लंगूर अब थोड़ा सा डर गया और उसके हाथों से वो छोटा सा बच्चा गिर गया। कहां पर? वरांडा की जो छत थी उसके ऊपर गिर गया। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड। लिस्टलेस का मतलब उसमें कोई भी हरकत नहीं थी, कोई हालचाल नहीं थी और ऐसे लग रहा था कि वो बच्चा शायद मर चुका है। As its body started to slide down, जैसे एक लाश होती है, वो अगर उससे फेंक दिया जाए तो वो अपने आप स्लोप के छत के ऊपर से फिसलती हुई नीचे आ रही थी। The excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. अब ये पता चला कि कुत्ते जो थे वो बच्चे को बचाने के लिए नहीं भौंक रहे थे, वो कुत्ते इसीलिए भौंक रहे थे कि जब वो लंगूर उस बच्चे को मार देगा और फेंक देगा तो उन कुत्तों को एक अच्छा सा शिकार मिल जाएगा, एक अच्छा सा खाना मिल जाएगा। ये देखते ही जैसे वो लंगूर का बच्चा छत से फिसलते हुए नीचे आ रहा था, नीचे जो कुत्ते थे वो फिर सर्कल बना के घूमने लगे, कब वो गिरेगा और कब हम उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन लेखक ने वैसे होने नहीं दिया। वो तुरंत लकड़ी लेके उस छत के नीचे गया और सारे कुत्तों को भगाने लगा। कीपिंग द डॉग्स एट बे। कीपिंग एट बे का मतलब होता है एक डिस्टेंस पे रखना, कि भाई तू दूर रहे। Managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. अब जैसे कि लेखक को उस जानलेवा प्रथा के बारे में याद आई थी कि जब भी एक झुंड में कोई मेल सरदार होता है, पुरुष सरदार होता है, और अगर उस झुंड में कोई और नया पुरुष जन्म लेता है तो वो उसे मार देता है ताकि बड़ा होके वो उसे कुछ नहीं कर सके और वो जो सरदार है वो सरदार बना रहे। इसीलिए, और यही बात सच निकली। जैसे जैसे कुत्तों को भगाया नीचे से, वो बच्चा फिसलते हुए नीचे आया। लेखक के हाथ में उस लंगूर बेबी की छोटी सी पूंछ उसके हाथ में आई। जैसे ही हाथ में वो बेबी आया तो वो इनर्ट और लाइफलेस नजर आ रहा था, बिल्कुल लाश की तरह जख्मी नजर आ रहा था, और यकीनन वो एक मेल बेबी ही था। मतलब वो जो प्रथा जिसके बारे में सुना या कहा जाता है या पढ़ा जाता है कि जानवरों में ऐसी हरकतें होती हैं कि अगर कोई मेल या पुरुष बच्चा अगर पैदा होता है उस झुंड में तो उसे मार दिया जाता है ताकि वो अगला सरदार ना बने। तो बच्चों, ये यहां तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि लेखक उस बच्चे के साथ क्या करते हैं।
By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. उसी समय, उसी दौरान जब उसके हाथ में, लेखक के हाथ में वो बेबी लंगूर आया, वो डर गए थे लेखक भी, और वो बच्चे को उस जख्मी हालत में देख के उनका दिल मानो रो पड़ा था। उसी समय लेखक के माता पिता और उनकी छोटी बहन दोनों भी वरांडा में आए और लेखक का रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाने वाला जो ऑपरेशन था वो देख रहे थे। कुछ हमारे पड़ोसी भी वहां पर कुछ दूरी पर जमा होने लग गए थे। उन्होंने लेखक ने बेबी लंगूर को हमारे बैकयार्ड में, बंगले के पीछे वाले जिसे बैकयार्ड कहा जाता है, पिछले हिस्से को, वहां पर पोल्ट्री कूप में, जैसे कबूतर या चिकन होते हैं या हैन होते हैं, उनके लिए छोटा सा पोल्ट्री या नेट जैसा बनाया जाता है, वहां पर उस लंगूर को लेटा दिया। उसकी बॉडी पर बहुत गहरे और जानलेवा काटने के निशान थे और नाखून के स्क्रैचेस थे। खून मानो नदी की तरह उस शरीर से बह रहा था। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। बेबी एकदम मोशनलेस था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स। सबसे पहले तो मेरे पिताजी फर्स्ट एड लेके आए, जैसे कि कॉटन, पट्टी वगैरह, जो लोशन वगैरह होता है, पाउडर वगैरह, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फर्स्ट एड किट में जो भी चीजें होती हैं वो सारे मेरे पिताजी लेके आए और घाव भरने लगे ताकि खून जो है वो बहना रुक जाए। अब वो मेडिकल प्रोफेशन में काम करते थे तो मानो डॉक्टर ही होंगे, और इसीलिए उन्हें शायद पता था कि कैसे वो ट्रीट करना है उस लंगूर को। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग। लेखक को बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी उस बच्चे की सांसें, उस बेबी लंगूर की सांसें चल रही थी। हालांकि देखा जाए तो उसकी सांसें बहुत शैलो थी, यानी बहुत देर से सांसें ले रहा था, जैसे कि एक जख्मी इंसान होता है, मरता हुआ इंसान होता है, जिसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही होती है, वैसे उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन फिर भी सांसें चल रही थी, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए लेखक और लेखक के पिताश्री इन दोनों ने भी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दी। आगे देखते हैं क्या हुआ। Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. ठंडी पानी की जो स्प्लैश होता है, फटके पानी के ऐसे छींटे उड़ाने के बाद बेबी को थोड़ा सा हिलने लग गया। वो थोड़ा शेकी अटेम्प्ट्स करने लगा, मीन्स थोड़ा थरथराने लगा, थोड़ा कांपने लगा। वो उठकर बैठ गया। वो अभी भी शॉक के स्टेट में था और ट्रेम्बल करने लगा, थरथराने लगा, जैसे कि पत्ता होता है हवा के झोंके के वजह से जैसे हिलता है, शेक करता है, वैसे वो हिल रहा था। शायद उसे ठंड लग रही थी या फिर वो शॉक में था, इसलिए डर के मारे ठिठुर रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. छोटी छोटी ट्विंकलिंग आईज सूजी हुई थी, भर आई थी आंसुओं से, और वो रोना चाह रहा था। धीरे धीरे वो रो रहा था, मानो कि एक इंसानी बच्चा जो होता है, जो मायूस होने के बाद जब रोना शुरू कर देता है, बस वैसे ही नजारा था। और वो एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही बिहेव कर रहा था, जैसे अगर एक छोटे बच्चों को मार लग जाती है, वो गिर जाता है, जैसे वो रोता है, जैसे वो उसका चेहरा मायूस और एकदम डिसअपॉइंटेड, सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है, वैसे ही उसका चेहरा नजर आ रहा था। I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. तो बच्चों, लेखक ने अब इतना सब होने के बाद उसे कुछ तो खाने के लिए चाहिए होगा, पानी पीने के लिए चाहिए होगा, तो लेखक ने उसे एक बनाना ऑफर किया और वो अपने हाथों में उस केले को लेकर ठिठुरते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से एक हेजिटेंट बाइट लेते गया।
मतलब एक बाइट लेता यहाँ वहां देखता, एक बाइट लेता यहाँ वहां देखता, मानो कि वो अभी भी ये देख रहा था कि कहीं वो बड़ा लंगूर वापस ना आ जाए और मेरी जान का दुश्मन ना बन जाए। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा लक्ष्य उस बेबी लंगूर पर केंद्रित था, लेकिन सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। जैसे कभी कभी हमको लगता है ना कोई मुझे देख तो नहीं रहा, हम तुरंत पीछे देखते हैं, और उसी तरह से मुझे वो फीलिंग आई कि शायद मुझे कोई देख रहा है, कोई मेरे पीछे है क्या। देखा तो क्या कि किचन के छत के ऊपर उसी बेबी लंगूर की माँ बड़ी शांति से सारा नजारा देख रही थी, और जो जो लेखक कर रहे थे, लेखक के पिताजी कर रहे थे, वो सारा नजारा वो लंगूर की माँ चुपचाप बैठ के देख रही थी, मानो कि वो जान चुकी है कि जहां मेरा बच्चा अभी है वहां उसे कोई खतरा नहीं है। अगर वो शायद मेरे पास आ जाए या मैं उसे लेने चली जाऊं और मुझे लेकर वापस छत पर आऊं, तो उस छत पर वो जो लंगूर है, बड़ा लंगूर सरदार, वो फिर से आ सकता है और फिर से मेरे बच्चे को तकलीफ दे सकता है, उसे शायद मार ही दे इस बार। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ नजारा देख रही थी कि मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल हो रही है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. थोड़ी ही देर में बच्चे की ध्यान भी अपनी मां पर गई, और मां को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, मानो कि उसे अच्छा है। बच्चे को आप कितना भी चॉकलेट दे दो या खाने पीने की चीजें दे दो, जब उसे याद आती है, जब उसे रोना होता है, तो उसे अपनी माँ ही चाहिए होती है। हम आप जब भी छोटे थे तब हमें सबसे ज्यादा करीबी कौन लगता था? हमारे पिताजी भी नहीं लगते थे जितने हमें करीब हमारी माँ लगती थी, और इसीलिए वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर टू द कूप, दरवाजे की तरफ से इशारा करते हुए मैंने उस बच्चे लंगूर की माँ को एक्सेस दिया। एक्सेस मतलब आने के लिए जगह करके दी, ताकि वो अपने बच्चे के पास आए और ध्यान से उसका ख्याल रखें। Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. तुरंत जैसे मैंने उसको पैसेज दिया, आने के लिए एक्सेस दिया, मदर तुरंत नीचे कूदकर उस कूप की तरफ आई और अपने छोटे से बेबी लंगूर को अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगाकर उसे कडल किया, उसे हक करते हुए पूरी बॉडी को इंस्पेक्ट किया, सारी बॉडी में अच्छे से देखा कि कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी है, कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ। जैसे माँ देखती बता कहाँ लगी चोट, बता कहाँ लगी चोट, और माँ अच्छे से देखती। और उसी तरह से लंगूर की जो माँ थी, बेबी लंगूर की माँ जो थी, उसने भी ठीक से देखा और ठीक से उसको परखा। उसके बाद क्या हुआ? The baby found great solace in her caring arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. बेबी को एक ग्रेट सोलस मिला उसके केयरिंग आर्म्स में। सोलस का मतलब होता है कंफर्ट, पीस, सुकून मिला मम्मी के गोद में जाते ही, और मदर वहीं पर बैठी रही थोड़े मिनटों तक। इट वॉज ऑलमोस्ट इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस। पॉन्डर मतलब सोचना, गहरी सोच में जाना, कि वो अपने ऑप्शंस अपने चुन रही थी कि मतलब मैं अभी क्या कर सकती हूँ, कि मैं वापस लेके जाऊं या बेबी को यहीं पे रखूं। वो सोच में थी, ऐसे लेखक को लगा, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ वैसी थी। And that's why, let's read it again. The baby found great solace in her caring arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes.
It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Let's see ahead. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Now, थोड़ी देर तक मदर जो थी, मदर लंगूर, लेखक की आंखों में इस कदर देख रही थी। शायद वो अगर बोल सकती तो शायद वो जरूर लेखक का शुक्रिया अदा करती और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती, लेकिन बंदर बोल नहीं सकते, इसलिए वो शांति से देखती रही। उसकी आंखों में जो ममता झलक रही थी, उसकी आंखों में जो ग्रैटिट्यूड नजर आ रहा था कि वो कितना मन से थैंक यू बोलना चाहती है, ये जो नजारा है, ये जो आंखों का लुक है, लेखक आज तक नहीं भूले। और इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी सी किताब में ये किस्से का जिक्र किया है, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इसीलिए लेखक ने शुरुआत में कहा था कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ है। शुरुआत में कहा था, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, कि लेखक ने कहा था कि मुझसे मेरे साथ सैटरडे के दोपहर में एक ऐसा हादसा हुआ कि जिस हादसे की वजह से मेरा दुनिया को, ईश्वर ने बनाई हुई प्रकृति को, हर एक सजीव को, हर एक जानवर को देखने का दृष्टिकोण मेरा बदल चुका है। मैंने एक नया डायमेंशन डिस्कवर किया है कि मैं कैसे देख सकता हूं, और उसी डायमेंशन का मतलब है हमारा सबसे पहला कर्तव्य कि इंसानियत हमेशा पहले आनी चाहिए, फिर वो जानवरों के साथ हो, इंसानों के साथ हो, या किसी भी जात धर्म वाले लोग, इंसानियत हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इस इमोशनल सेंटिमेंट में बह जाने के बाद वहां पर लेखक ने कहा कि देखो, वहां बैठी है एक यूनिवर्सल मदर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इन्वॉल्विंग एनीवेयर। मतलब यूनिवर्सल यानी पूरे जग में मां बस ऐसी ही होती है। Stricken child in her lap. Then in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. थोड़ी ही समय में एक फ्लैश, वो तुरंत अपने बेबी को अपने बेली से, अपने पेट से लटकाकर जंप किया और किचन रूफ पर चली गई। उसने पूरे इलाके का सूक्ष्म निरीक्षण किया, बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, सर्वे किया, और कहीं वो विशियस यानी एविल, विकेड मतलब जो बहुत नालायक ऐसे लोग होते हैं जिसको विशियस कहा जाता है, जो बहुत चालबाज होते हैं, जो किसी की मदद नहीं करते, वो बहुत बुरे लोग होते हैं। तो ऐसे बुरे मेल लंगूर की वो तलाश कर रही थी, कहीं वो किसी छत पे तो नहीं तो पता चला मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, फिर से हमें दोनों को वो झपटेगा और हम दोनों को मार देगा इस बार। और इस तरह से अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, और वो लेफ्ट अवे, लेफ्ट का मतलब होता है उसने वहां से जंप करके दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना सफर शुरू किया। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. मतलब ब्रीफ मीटिंग यानी एक जो छोटी सी जो मुलाकात थी, जो एनकाउंटर था उस माँ और उस बेबी लंगूर और मेरे बीच में, उसने मुझे ये कन्विंस कर दिया है, उसने मुझे यकीन दिलाया है कि अगर बोलना नहीं भी हो सका, लेकिन आंखों से, जज्बातों से जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे पे विश्वास दिखा सकते हैं, ये हकीकत में भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सही वक्त पर सही तार को स्ट्राइक किया, इफ यू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एन एक्शन। मतलब जो रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ रिलेशनशिप नाम की नहीं रह जाती, वो एक्शन हो जाती, वो बेटर हो जाती। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे एनकाउंटर अगर किसी लाइफ में किसी के साथ भी हो तो वो हमेशा एक अच्छा काम करे, ताकि वो
his पूरे लाइफ में याद Mother showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. तो मदर लंगूर की आंखों में देखकर उसके साथ जो कुछ पल बिताए, जो छोटा सा एनकाउंटर, छोटी सी मीटिंग हुई लेखक की, उसने लेखक को ये बात बता दी कि जानवर और इंसान में केवल खाने का रिश्ता नहीं है कि इंसान जानवर के सामने कोई खाना फेंके और जानवर उसके पीछे लग के वो खाना खाए और उससे लाड़ प्यार करे। बस यही जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता नहीं होता है। जानवर को समझना है तो जानवर के साथ, जानवर के जैसा उसका सोचना, उनके जैसा सोचना सीखो। उन्हें सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उन्हें उनका फ्रीडम भी चाहिए। जंगल काट के अगर हम इमारतें बनाने लग गए तो जानवर जो बेजुबान होते हैं वो क्या बोल पाएंगे हमें। इसीलिए बच्चों, जानवरों को अगर हमें बचाना है तो हमें इंसानियत को प्रायोरिटी देनी है और जंगलों को काटने से बचाना है। क्योंकि अगर हमें हमारे घर से कोई निकाल कर बाहर फेंक दे तो सोचो हमें कितना बुरा लगेगा, कितना गुस्सा आएगा। और हम, वो जानवर बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम डेवलपमेंट की आड़ में पता नहीं कितने जंगल काटते जा रहे हैं और कितनी सारी बुरी चीजें करते जा रहे हैं। लेकिन वो बेजुबान जानवर ना किसी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, ना मानवाधिकार में जा सकते हैं। मानव के लिए तो मानवाधिकार है, लेकिन जानवरों के लिए जानवर अधिकार कब आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों। 55 years have passed since that day। ये जब लेखक ने ये किस्सा लिखा था, उस किस्से को लिखकर 55 साल बीत चुके थे। आज मैं 70 साल का एक बुजुर्ग इंसान, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल। लेकिन आज भी मुझे कल हुआ था वो किस्सा इस तरह से याद है, मानो कि कल ही हुआ था। 70 साल का हो चुका हूं, उस किस्से को 55 साल हो चुके हैं। लेखक तपन मुखर्जी ये कहते हैं कि ऐसा एनकाउंटर, ऐसे स्पेशल काइंड का एनकाउंटर मेरे लाइफ में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और जो मेरे साथ हुआ था वो आज 70 साल की उम्र में होने के बावजूद भी मैं ये भुला नहीं पाऊंगा। तो बच्चों, हमारे लेखक का नाम था तपन मुखर्जी और ये उनकी लाइफ की एक हकीकत है, जो कि एक सच कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ये कहानी हमें इस 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में दी गई है, ताकि आपके लाइफ में भी 10वीं के बाद आप कॉलेज जाओगे, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करने के लिए जाओगे, आपके साथ भी ऐसे एनकाउंटर्स अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग किस्म के जानवरों से होती रहेंगी। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, इंसानियत ही हमेशा हमें पहले यूज करनी चाहिए। इंसानियत को ही सबसे पहला प्राधान्य देना चाहिए, बाकी सारी चीजें इंसानियत के बाद ही आती। हम अच्छा बिहेव करेंगे तो यकीनन हमारे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट में ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। लेखक तपन मुखर्जी के हस्ते लिखी गई ये कहानी एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा अद्भुत किस्सा जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सागर महाली आपका यहाँ पर निरोप लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.